Hello students, good morning students. Today we are going to start with the revision of first chapter. As till last week we have completed the writing as well as teaching of chapter of 3 chapters from your subject, that is computer. So now we are going to revise our first chapter, that is computer fundamentals. Whatever we have studied in this up till now, or whatever we have studied, that we will revise for your further preparation. Okay, so the content that we have studied in this chapter are early calculating devices, generation of computer, types of computer, characteristics of computer, computer memory, microprocessor and motherboard. We will see all these things one by one once again. Okay, so going with early calculating device. As I told you earlier as well, that there are 4 types of early calculating device, and all the device has different features. Like ABUS, your first early calculating device is a ABUS which has a beads मतलब उसके अंदर क्या थे, मोती थे. आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है. ओके, ये इमेज के अंदर क्या है ना, आपको यहाँ पे मोती होते थे ये डिवाइस के अंदर. और ये डिवाइस किस लिए यूज होता था? फॉर डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, then after that next came Napier bone. Now Napier bone was invented by John Napier in 1617. Okay, so Napier bone was a calculating device. The Napier bone was a calculating device which was used for doing two types of arithmetic operation. The first one is multiplication and the second one is division. Okay, so ABUS was used for doing addition and subtraction, and Napier bone was used for doing multiplication and division. After that, next type of device came after Napier bone for calculating or for doing your mathematical operation, that was a Pascal line. The Pascal line machine, the Pascal line calculating device was made by or was designed by a Blaise Pascal, which was a French mathematician. फ्रेंच लोग होते हैं ना, फ्रेंच लोगों में एक मैथमेटिशियन था, जिसने मैथमेटिक्स में डिग्री दे हैव achieved a degree in mathematics, and the person was Blaise Pascaline, who invented this Pascaline device for calculating in 1642. कब किया था इन्होंने? 1642. ओके, तो ये पास्कलाइन जो डिवाइस है वो कैसे वर्क करता था ना, इसके ऊपर आप देख सकते हो इन इमेज, यहाँ पे व्हील्स दिख रहे हैं. तो हमें क्या करना पड़ता था, अगर हमें एडिशन करना है या डिवीजन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें व्हील्स को क्या करना पड़ता था, घुमाना पड़ता था, और उसके बेसिस पे क्या होता था, हर कैलकुलेशन होता था. ओके, सो everything, if you want to do, if any of the arithmetical or operation or any of the mathematical operation, if you want to do on this machine, we have to rotate the wheel of this Pascaline calculating device. Then नेक्स्ट टाइप ऑफ अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस इज अ डिफरेंस इंजन. कौन सा है? डिफरेंस इंजन. नाउ दिस डिफरेंस इंजन वाज डेवलप्ड बाय अ चार्ल्स बैबेज. चार्ल्स बैबेज वही इंसान है जिसने क्या किया है, कंप्यूटर बनाया है. ओके, उसी इंसान ने क्या किया था, ही वॉज अ इंग्लिश मैथमेटिशियन, और उन्होंने क्या किया, इन 1822 डिफरेंस इंजन नाम का क्या किया, एक डिवाइस बनाया जिसके अंदर क्या था ना, ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम स्टोर थे. जैसे आपका MS लोगो वगैरह की प्रोग्रामिंग होती है ना, इसके अंदर ना भी अलग अलग प्रोग्राम होते हैं. तो कैलकुलेशन के लिए क्या किया था, इसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम थे. और जैसे आपके कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है, आप देते हो नंबर 2 + 3, आपने इंटर किया तो क्या होता है, आपको आंसर मिलता है 5. ओके, तो वैसे ही ये डिफरेंस इंजन वर्क करता था डायरेक्टली बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम. ओके, सो रिजल्ट वॉज जनरेटेड ऑटोमेटिकली इन दिस मशीन. नाउ next type of device is a analytical engine. Next type of early calculating device is a analytical engine. This analytical engine was also developed by Charles Babbage in 1833. नाउ हाउ दिस डिवाइस वॉज वर्किंग. तो आपको यहाँ पे इमेज के अंदर, या मैंने पहले भी वीडियो में आपको इमेज बताई है, इन दैट इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसको घुमाने के लिए, जैसे घुमाने के लिए क्या है, कुछ रोटेशन करने के लिए आपको यहाँ पे
डिवाइस दिया गया है तो क्या करता था ना, ये मशीन एक तरफ से इनपुट लेता था, इनपुट मतलब कुछ नंबर्स अपने अंदर इनपुट में लेता था और फिर दूसरी तरफ से क्या करता था, वो अपने को आउटपुट प्रोसेस करता था। ओके, पहले वो नंबर्स इनपुट में लेता था, स्टोर करता था खुद के अंदर, फिर उन नंबर को प्रोसेस करता था मशीन में, प्रोसेस मतलब उसको समझता था और प्रोसेस करने के बाद फिर क्या करता था, आउटपुट जनरेट करता था। ओके, नाउ the last type of calculating device is a Mark 1. Mark 1 is a calculating device which was developed in 1944 और ये जो calculating device है Mark 1, ये calculating device क्या था, साइज में ना बहुत बड़ा था, साइज में बहुत बड़ा था और इसकी हाइट थी एटलीस्ट 50 फीट। कितनी हाइट थी इसकी, 50 फीट का था ये, आप देख सकते हो इन अ फिगर। तो मार्क 1 वाज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस हुज साइज वाज 50 फीट लॉन्ग। ओके, so this was also calculating device used for doing a large calculation like 5 plus 3 minus 6 plus 8 into 2, ऐसे ये क्या हो गया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। तो इस टाइप के कैलकुलेशन के लिए मार्क 1 डिवाइस यूज होता था। नाउ going further with the second point of this chapter, that is generation of computer. In generation of computer, there are 4 generations of a computer, as I told you earlier. So going with the first generation computer, the first generation computer were developed in 1945 to 1956, and these first generation computer were used for fastest calculation, and this first generation computer were having vacuum tube inside it for doing calculation, for generating output, but the size of the vacuum tube was very large, so the rate of this first generation computer were also high. Now next type of generation of computer is second generation computer. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वी आर हैविंग ट्रांजिस्टर इनबिल्ट इनसाइड इट। आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर की पिन है यहाँ पे इमेज में। ओके, सो दिस कंप्यूटर वी आर हैविंग ट्रांजिस्टर इनसाइड इट, एंड the transistor the computer was as the transistor size was smaller, so it was not taking much energy as like a फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अभी पहले जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब थे, बड़े बड़े थे, इसलिए वो क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था। बट ट्रांजिस्टर कैसे छोटे होते हैं, तो उसके वजह से क्या था कि ट्रांजिस्टर ने क्या किया था, अपनी साइज़ को मिनिमाइज कर लिया था। साइज़ की वजह से कोई एज इसकी साइज़ बहुत छोटी थी, तो ये क्या करता था, लेस एनर्जी लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। ओके, सो नेक्स्ट हीट लेस लगती थी, एंड द रेट ऑफ दिस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज ऑल्सो लेसर दैन अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके, और इसके अंदर कैलकुलेशन भी फास्ट होते थे दैन अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नाउ अदर टाइप ऑफ computer is a third generation computer which came in 1964 and were till 1971. Now these computers were not using a transistor. The third computer were not using a transistor. The third generation computer were having a IC. IC means integrated circuit. These ICs were replaced by a transistor in third generation computer, and as the ICs were smaller in size than a transistor, so what was the use that if we embed IC inside a computer, what was it doing? It was taking less power, like transistor was taking less power than a first generation computer due to vacuum tube. Same way कि इसके अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर नहीं है, हमने IC एम्बेड किया है, इस वजह से क्या करता है, इसको ज़्यादा पावर नहीं लगता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, और जो भी इसका रिजल्ट होता है ना बिकॉज ऑफ IC बहुत करेक्ट होता है। इट इज़ टोटली करेक्ट, और रिजल्ट बेटर वे में अपने पास बेटर वे में प्रोड्यूस करता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ computer is a fourth generation computer that was invented in 1971 and is till present. Okay, so fourth generation computer we are having
SI टेक्नोलॉजी, दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये जो VLSI IC, ये भी क्या है, एक टाइप की IC है, जो कि क्या है, जो आपके एप्पल वगैरह के मोबाइल है या एप्पल वगैरह के कंप्यूटर है उसके अंदर मोस्टली एम्बेड किया जाता है। ओके, तो ये है ना, जैसे हमें ट्रांजिस्टर बहुत सारे लगाने पड़ते हैं ऑन अ मदरबोर्ड, देन IC बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, बट हमने अगर VLSI एक चिप लगा दी ना, तो हम क्या बचता है ना, मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारी जगह बच जाती है, और इसके वजह से क्या होता है, इट डजंट कंज्यूम मोर एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है, और मदरबोर्ड को कूल रखने में हेल्प करता है। ओके, सो the SI was smaller in size. VLSI क्या था, the fourth generation computer due to a single VLSI chip, उसकी साइज़ क्या थी, उसकी साइज़ छोटी थी कंपेयर टू अदर जनरेशन कंप्यूटर। ओके, और इसको क्या होता था कि वो लेस एनर्जी लेता था, और क्या था, बहुत सस्ता मिलता था, बहुत इसकी रेट क्या थी, बहुत सस्ती थी दैन अदर 3 जनरेशन्स। नाउ next type of computer is 5th generation computer, that is present and beyond। प्रेजेंट एंड बियॉन्ड मतलब क्या, जो कि अभी चल रहा है और आगे भी चलेंगे, जैसे कि रोबोट्स। आई टोल्ड यू इन अ लेक्चर, रोबोट्स होते हैं, तो रोबोट्स क्या करते हैं, आपका जो भी डेटा है या जो भी है उससे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द 5th जनरेशन कंप्यूटर आर नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब वो एक रोबोटिक टेक्निक होती है जो कि हम काफ़ी फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, लाइक मेडिकल फील्ड, लाइक टीचिंग फील्ड, लाइक working field, government working field, or at many places we can use that। okay, so अभी जैसे कि अभी कोरोना के वजह से चाइना वगैरह न्यूज़ में आया था कि रोबोट्स का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज कोरोना इज़ इन्फेक्टिंग टू द डॉक्टर्स एज वेल। तो इसलिए क्या है ना, 5th जनरेशन कंप्यूटर मतलब अभी के जो कंप्यूटर है जो नई टेक्नोलॉजी में बन रहे हैं या कई जगह पे बन चुके हैं, वो रोबोटिक बेस्ड है, जिन्हें हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं, और कमांड देने की वजह से क्या होता है ना, दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर कमांड। जैसे हमने बोला सिट डाउन, सो द रोबोट विल सिट डाउन, वी से दैट कुक द फूड, सो अकॉर्डिंग टू कमांड दे विल कुक द फूड। तो ये सारे कमांड्स है जो हम 5th जनरेशन कंप्यूटर को दे सकते हैं। ओके, सो आई होप दैट हियर यू अंडरस्टूड द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर with the type of computer. Now there are a total 4 types of computer. First one is microcomputer. Microcomputer means a personal computer. Personal computer जैसे लैपटॉप होता है ना, this type of computers are known as personal computers. Okay, तो ये मिनी माइक्रो कंप्यूटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? We use this microcomputer in office, classrooms, homes. Like अभी मैं आपको लैपटॉप पे पढ़ा रही थी. Okay, तो स्कूल में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर। सो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, आर स्मॉलर इन साइज एंड कैन परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ टास्क इन एंड आर लेस एक्सपेंसिव, मतलब उनकी रेट भी बहुत कम है, बहुत सारे टाइप के ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर के टाइप कौन से, एग्जांपल कौन से, पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज अ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर पावरफुल दैन अ माइक्रो कंप्यूटर। पावरफुल मतलब वो ज़्यादा काम कर सकते हैं दैन अ माइक्रो कंप्यूटर, और उसके अंदर क्या है ना, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है और ऑपरेटिंग की स्पीड भी हायर होती है। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ना, उसके अंदर जैसे आपने सुना होगा मोबाइल के अंदर मेमोरी है, वैसे कंप्यूटर्स में भी मेमोरी होती है। तो मिनी कंप्यूटर की मेमोरी ना आपके माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, और ऑपरेटिंग स्पीड मतलब कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करना है तो उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। और क्या है ना, ये कहाँ यूज़ होते हैं मोस्टली, ये मिनी कंप्यूटर यूज़ होते हैं मीडियम साइज़ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि छोटी छोटी कोई शॉप्स हो, जैसे कि नेट कैफ़े है वगैरह, तो ऐसी जगह पे ये मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर।
अभी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ना मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब क्या कि इनके अंदर ज़्यादा हाई स्पीड डेटा ये प्रोड्यूस ऑपरेट करते हैं। और क्या है ये अभी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से पावरफुल है, तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं मतलब क्या कि बड़ी बड़ी जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है, जैसे कि TCS है, इन्फोसिस वगैरह, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज में ये मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं टू ऑपरेट देयर डेटा एट हायर स्पीड। और ये कंप्यूटर ना मिनी कंप्यूटर से साइज में भी क्या है, बड़े हैं और महंगे हैं। ओके ना, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ अ सुपर कंप्यूटर। नाउ सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ये कंप्यूटर क्यों ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बिकॉज आप इमेज में देख सकते हो ये कंप्यूटर की साइज़ बहुत बड़ी है। कंप्यूटर की साइज़ क्या है, बहुत बड़ी है। इसके वजह से ये क्या है ना, बहुत फास्ट ऑपरेट करते हैं, बहुत फास्ट आपका डेटा प्रोसेस करते हैं। और क्या है ना, इसकी बड़ी साइज़ होने की वजह से इनके रेट भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अभी ये सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये सुपर कंप्यूटर जैसे आपको बोला जाता है ना, न्यूज़ में आता है कि यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, द वेदर इज़ नॉट क्लियर इन मुंबई, इट्स रेनिंग इन गुजरात, ओके, देयर इज स्नोफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वेदर फोरकास्ट हमें कहाँ से ये बताया जाता है दैट विद इन 2-3 days द रेनिंग विल स्टार्ट इन वेरियस रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल, ये सब बताया जाता है अपने को न्यूज़ में। तो ये सब कैसे पता चलता है, ये सब पता लगाता है सुपर कंप्यूटर यूजिंग अ वेदर फोरकास्टिंग, ओके, यूजिंग अ वेदर फोरकास्टिंग प्रोग्राम. So I hope here you understood the types of computer. Now proceeding further with characteristics of computer. Now there are the characteristics of computer are speed, versatility, accuracy, delicacy, large storage capacity. Speed means operate at high speed. Versatility means performs various tasks. Accuracy means produce correct result. Delicacy means the computer never gets bored. Large storage capacity means the computer has the higher has more space within it to store the more amount of data. Okay, now proceeding further with computer memory. The computer memory, as I told you earlier, are of 3 types: the primary memory and the secondary memory. The primary memory is the memory that stores data and instruction for processing. मतलब क्या, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कि डेटा क्या करती है, प्रोसेस करती है. प्रोसेस मतलब उसको जो हम इनपुट देते हैं उसे कन्वर्ट करती है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, और फिर हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस करती है. तो प्राइमरी मेमोरी के ना 2 टाइप है. फर्स्ट वन इज़ अ रैम एंड सेकेंड वन इज़ अ रोम. ओके, सो रैम एक ऐसी मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. And RAM is a type of memory on which you can read as well as write data. RAM कैसी मेमोरी है जिसके ऊपर आप लिख भी सकते हो और जिसके जहाँ से आप क्या कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो. You can write as well as read data from the random access memory. And the next type of primary memory is a ROM memory. रोम मेमोरी क्या है ना, इन रोम मेमोरी वी गिव इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ बूटिंग मतलब जब हमें कंप्यूटर में पार्टीशन करना होता है ना अपने डेटा का, तब हम रोम का यूज़ करते हैं. सो what we can do in ROM memory? In ROM memory we can only read data from the ROM memory. ROM memory में अगर हमने एक बार लिख दिया ना कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर से एक ही बार रीड कर सकते हैं. जैसे कि अभी ये PDF फाइल है, ये क्या हो गया, ये प्रिंट हो गई है, इसको लिख लिया है मैंने. लिखने के बाद अभी इसको क्या करना है, रीड करना है. अब इसके अंदर आप फिर से राइट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते. सो दिस टाइप ऑफ मेमोरी, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज रोम मेमोरी. दिस टाइप ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड इन अ रोम मेमोरी विच आर ओनली रीडेबल फाइल्स. ओके, एंड द डेटा इन द रोम मेमोरी इज स्टोर्ड परमानेंटली मतलब उसको क्या, उसके अंदर चेंजेस नहीं किए जाते, उसके अंदर कोई बदल वगैरह किए नहीं जाते. देयर आर नो चेंजेस और देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन द रोम मेमोरी. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज द सेकेंडरी मेमोरी.
सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो टेम्पररी यूज़ के फॉर टेम्पररी पर्पस यूज़ होती है, दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी लाइक सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो ये सब क्या है ना सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम क्या करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप को बाहर से कनेक्ट करते हैं, और मोबाइल, मेमोरी कार्ड, दिस आर द सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम बाहर से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं डेटा फॉर टेम्पररी पर्पस स्टोर करके रखते हैं। So here I hope that you have understood the both type of memory once again, that is the primary memory and the secondary memory. Now going with the next type of memory, that is bit and byte. बीट एंड बाइट क्या होता है या बीट्स क्या है? तो बीट एंड बाइट आर अ कंप्यूटर मेजरमेंट। कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका डेटा है वो किस में मेजर होता है? बीट और बाइट में। और बीट और जो आपके बीट है वो किस में एज यू नो दैट द कंप्यूटर डजेंट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज, तो इसलिए कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, जो कि किसके फॉर्म में होती है? 0 और 1 के फॉर्म में होती है। ओके, तो बीट हम किससे रिप्रेजेंट, बीट और बाइट किससे हम बताते हैं? 0 और 1 से बताते हैं। तो बीट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट, जैसे मीटर, फिर किलोमीटर, फिर मतलब आगे जाता है, वैसे ही ना सबसे छोटा जो है कंप्यूटर मेजरमेंट में वो क्या कौन सा है? वो है बाइट, जो कि 1 बाइट मतलब कितना बनता है? 8 बिट। 1 किलो बाइट कितना बनता है? 124 बीट। 1 मेगाबाइट कितना बनता है? 124 किलो बाइट। 1 गीगाबाइट कितना बनता है? 124 मेगाबाइट। एंड 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 124 गीगाबाइट। अभी ये सब ना मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तब आपके ध्यान में आ गया होगा। वी आर डूइंग रिवीजन, तो आपको सिर्फ मैं रिवाइज करवा रही हूँ। तो जो बीट है ना, हम उसे हमेशा किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल बी से। देन बाइट को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल बी में। किलोबाइट को लिखते हैं हम केबी। मेगाबाइट इज नोन एज एमबी। gigabyte we call it as GB in short, and terabyte is known as TB in short। और इनका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस वीडियो में दिया है। बीट, बाइट या किलोबाइट, मेगाबाइट जो भी है, दिस आर द मेजरमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, दैट इज अ माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर is also known as the CPU of a computer। माइक्रोप्रोसेसर को ना हम CPU भी बुलाते हैं कंप्यूटर का। माइक्रोप्रोसेसर क्यों यूज़ होता है? तो माइक्रोप्रोसेसर इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। जो भी आपके CPU के अंदर डेटा प्रोसेस हो रहा है ना, उसका कैलकुलेशन करने के लिए, उसका कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ माइक्रोप्रोसेसर। तो माइक्रोप्रोसेसर को ना इस वजह से हम क्या करते हैं? वी कॉल इट ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर एज वेल। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वैसे कंप्यूटर का ब्रेन क्या कौन सा होता है? माइक्रोप्रोसेसर होता है। ओके, सो माइक्रोप्रोसेसर इज यूज फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन इन which are done inside a CPU, and it is also called, the microprocessor is also called as a CPU, and it is also called as a brain of a computer। ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है माइक्रोप्रोसेसर को। क्यों? बिकॉज इसके अंदर सारे कैलकुलेशन सारी फाइल से होती है, सारे कंपैरिजन होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे कि ह्यूमन्स ब्रेन होता है ना, इंसानों के दिमाग में ब्रेन होता है ना, वैसे माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? माइक्रोप्रोसेसर। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, माइक्रोप्रोसेसर इज डिवाइडेड इनटू three forms, that is control unit, arithmetical logical unit and memory unit। अभी कंट्रोल यूनिट होता क्या है? तो कंट्रोल यूनिट है ना, जो भी हम डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, डेटा मतलब हमने वर्ड फाइल ली, उसको सपोज हमने टाइप किया, टाइप करने के बाद उसको सेव किया, सेव करने के बाद उसको ओपन किया, तो जो भी हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को या आउटपुट ले रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो कौन ऑपरेट करता है? दैट इज ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट इनसाइड अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट जो है ना, क्या करता है? आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे फाइल, आपने वर्ड की फाइल ओपन की, उसके अंदर टाइपिंग की, टाइपिंग करने के बाद उसको सेव किया, सेव करने के बाद उसको फिर से खोला मतलब आपने आउटपुट लिया। तो ये सारे काम कौन करता है ना कंप्यूटर के अंदर? ये सारे काम करने के लिए एक उसके अंदर
इनबिल्ट माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस होता है, दैट इज़ अ कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी हम इसको इंफॉर्मेशन पास करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन ये एक्वायर करता है, और एक्वायर करने के बाद अपने को रिजल्ट देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट इन माइक्रो प्रोसेसर इज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है कि इसको हम जो भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं ना, वो सारे किसके थ्रू ऑपरेट होते हैं, दैट गेट ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जैसे कि हमें एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया या कंपैरिजन किया, जैसे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। ओके, इन टाइप के जो हम मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वो किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं इनसाइड अ कंप्यूटर, वो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट यूनिट से, जो कि है अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ओके, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ यूनिट इन माइक्रो प्रोसेसर इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन इनसाइड इट। लाइक कौन सी इंफॉर्मेशन होल्ड करता है मतलब खुद के अंदर रखता है, जैसे कि डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है, देन एड्रेस है वगैरह, रिजल्ट्स है। तो ऐसी सारी चीज़ें क्या करता है ना, सारी होल्ड करके रखता है, मतलब खुद के अंदर इंसर्ट करके रखता है, जैसे कि स्टोर करके रखता है। मेमोरी यूनिट जैसे कि हमने वर्ड फाइल हमने कहाँ सेव की है, कौन से फोल्डर में सेव की है, ये इसका सबका पता किसको होता है, मेमोरी यूनिट को होता है। हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे कि एडिशन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब प्लस की साइन प्रेस किया तो वो इंस्ट्रक्शन हो गया कि एडिशन करना है। तो ये सारा डेटा जो है कौन होल्ड करता है, दैट इज होल्डेड बाय अ मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट आपके सारा डेटा होल्ड करता है। इसके वजह से क्या है, मेमोरी यूनिट की वजह से इट इज़ पॉसिबल दैट वी विल गेट द रिजल्ट इमीडिएटली ऑन आवर कंप्यूटर। ओके, रिजल्ट भी मेमोरी यूनिट की वजह से कंप्यूटर क्या करता है, जल्दी प्रोड्यूस करता है। ओके, देन द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज अ मदरबोर्ड। अभी हमने सीखा रैम, रोम वगैरह, आईसी, वीएलआईसी वगैरह, हमने ये सारे चिप्स वगैरह सब कुछ देखे। कूलिंग फ़ैन मैंने आपको बीच में बताया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, तो सीपीयू के अंदर ना हमेशा एक बोर्ड होता है, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में ये बोर्ड दिख रहा है। ये बोर्ड के ऊपर ना आपकी सारी चीज़ें एम्बेड की जाती है, मतलब इसके अंदर कनेक्ट की जाती है, आईसी कनेक्ट की जाती है, देन प्लग की आईसी होती है, मेमोरी कार्ड होता है आपका, दूसरे रैम रोम इसके अंदर एम्बेड किए जाते हैं। देन इसके अंदर कूलिंग फ़ैन होता है, इसके अंदर केबल्स होते हैं, देन इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, मदरबोर्ड एक कंप्लीट कंप्यूटर बनता है। अगर आपके सिस्टम में, आपके सीपीयू के अंदर अगर मदरबोर्ड ही ना होना तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। सो मदरबोर्ड इज़ द मेन डिवाइस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग आवर कंप्यूटर। एंड जो भी हमें कंप्यूटर चलाने के लिए डिवाइसेस लगते हैं, लाइक रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, देन कूलिंग फ़ैन वगैरह वगैरह, जो भी है वो जो भी हमें चाहिए होता है वो सब किसके अंदर फिट किया जाता है, वो सब ये मदरबोर्ड के अंदर फिट किया जाता है। जैसे कि लाइट होती है ना अपनी लाइट्स घर में, तो लाइट का जो बोर्ड होता है ना, उसके अंदर बटन्स होते हैं, फ़ैन का रेगुलेटर होता है, सॉकेट प्लगिंग के लिए होता है, ओके, पिन प्लगिंग के लिए सॉकेट होता है। तो वो उसकी सारी वायर्स एक ही बोर्ड के ऊपर एम्बेड की जाती है ना, वैसे ही कि कंप्यूटर चलाने की जो जो चीज़ें चाहिए ना वो सारी मदरबोर्ड के ऊपर प्लग की जाती है। So here I hope that you understood once again the chapter number 1. रिवीजन में आपको समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट पीरियड आई विल प्रोवाइड यू द वर्कशीट, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, लाइक अ क्वेश्चन बैंक, जिसको आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है इन द नेक्स्ट पीरियड। और होमवर्क आपके लिए है कि आप लोगों को जो भी मैंने चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है उससे आपको क्या करना है, लर्न करना है, बिकॉज ऑन नेक्स्ट सैटरडे वी विल हैव टेस्ट ऑन चैप्टर नंबर 1 एंड ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे आई विल गिव यू अ स्मॉलर वर्कशीट, मतलब एक क्वेश्चन बैंक का टाइप दूंगी चैप्टर 1 से रिलेटेड, आपको वो प्रिपेयर करना होगा ऑन वेडनेसडे। बट फॉर अ वाइल जस्ट रिवाइज, गो थ्रू द वीडियो 2-3 टाइम्स, मतलब आपकी समझ में आएगा कि फिर से समझ में आएगा कि कहाँ से क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। और अगर आपको और डिटेल में समझना होगा तो मैंने प्रीवियस जो वीडियोस भेजे थे आपको फर्स्ट चैप्टर के, उनके रिवाइज करो, जिससे आपको फिर से सब ध्यान में आ जाएगा।
Okay, so please go through the video, and your homework is to learn first chapter for test on Saturday. Okay. Okay, so thank you.